streaming live on. Yeah, now we are there. Good evening, everyone. Welcome to the launch episode of Arabica Coffee Blooms Talk Show, episode 1. I'm your host for this evening, Deepa Chaudhary. On behalf of the entire Positive Thoughts team, my heartfelt gratitude to all the wonderful people who are here with us for our launch episode. Thank you so much. As they say, first is always special, and so is our guest this evening. She is the founder, partner, and COO of Dirian Innovative Technologies. Welcome, Mrs. Surbhi Sharma. Thank you, Deepa. Surbhi Thank ji, you so much. welcome. Thank you. तो मिलते हैं कॉफी टॉक पे with Surbhi Sharma. Yeah. Surbhi ji, coffee. Yeah, coffee. So Surbhi ji, tell us about yourself. I belong to a family from Meerut, and my father is a retired IPS officer. We are two sisters. I have my education from various schools in Uttar Pradesh, since my father was in a transfer job ranging from Loreto Convent, Lucknow, CGM Dehradun, St. Patrick's Agra, Our Lady of Fatima Aligarh, Sophia Meerut. Did my post-graduation in zoology, mass comm and journalism, and finally did my master's in education. After that, I was married into a family from Ghaziabad. My husband's name is Madhur Sharma. He's an engineering director in a software company and is based in Noida. I have two daughters, and this family is from Meerut basically, but we are settled in Ghaziabad. And we had a very special member in this family, Major Mohit Sharma, and who's an Ashok Chakra awardee, a Sena Medal awardee, who attained martyrdom on 21st March 2009. So I feel proud in being a part of this family. सुरभि जी, जहां बात करी आप मोहित शर्मा की आपने, तो जो कि जाना पहचाना नाम है, पर फिर भी मैं अपनी ऑडियंस के लिए चाहूंगी आप और भी बताएं उनके बारे में, बिकॉज यू हैव बीन अ क्लोज फैमिली मेंबर. सो जो आप बता पाएंगी वो कोई और नहीं बता पाएगा. हम आपसे और जानना चाहेंगे. जी, जब हम एक फौजी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि वो बहुत ही साहसी होगा, और वैसे ही मेरे देवर थे मेजर मोहित शर्मा. बट जब वो एक परिवार में होते थे तो हम ये सोच नहीं सकते थे कि वो एक फौज का अफसर है. वो एक घर में एक चुलबुला सा इंसान जो हर समय हंसता खेलता कूदता रहता था. और आज जब मैं सोचती हूँ कि उसने इतना साहसी कार्य किया था, दैट ही किल्ड 4 militants, saved 2 of his comrades, and while he attained martyrdom in that operation, विश्वास नहीं होता कि वो एक चुलबुला सा चेहरा, वो एक शैतानी जिसकी आंखों में रहती थी, वो इतना साहसी कार्य कर सकता है. ऐसा ही उसने 2004-13 मार्च को किया था, जिसमें वो डिस्गाइज मतलब एज अ पाकिस्तानी मिलिटेंट बन के गया था. ही स्टेड विद पाकिस्तानी मिलिटेंट्स फॉर 2 weeks. उनके साथ रहा. जब उन्हें शक हुआ तो उसने कहा कि आपको अगर शक है तो मुझे मार सकते हैं. और जब तक वो कुछ डिसाइड करते, उसने अपनी पिस्टल से उन दोनों मिलिटेंट्स को मार दिया था. और इस इंसिडेंट पे उनके ऊपर एक पिक्चर बन रही है, इफ्तिकार, जिसके प्रोड्यूसर हैं मनीष मुंद्रा जी, जिन्होंने मसान जैसी मूवीज भी प्रोड्यूस करी हैं. एंड वो अगर स्थिति सब सही रही तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो अगस्त 2022 में इट विल बी ऑन फ्लोर्स, एंड दैट विल कवर हिज ब्रेवरी एंड एवरीथिंग दैट वाज गुड अबाउट हिम. उसके जो जुनून था फौज में ज्वाइन करने का. Initially, he was not a very keen person to join the forces, but in 11, he thought of doing it because his elder brother, my husband, decided that I will go for forces. And my husband cleared the written twice, but he couldn't clear the SSB. And वो एक होता है ना sibling rivalry. दोनों भाइयों में से 13 months का age gap था. उसने, and my husband was considered to be more intelligent than him. He was that naughty kind, जिनको पढ़ाई लिखाई में कम इंटरेस्ट रहता है. तो जब उसने क्लियर नहीं किया तो उसने कहा कि मैं करूंगा. तो माय हस्बैंड सेड, जब मैं नहीं कर सका तो तू नहीं कर सकता. तो उसने कहा नहीं, मैं इसे जरूर करके क्लियर करके दिखाऊंगा. एंड ही क्लियर्ड इट इन द वेरी फर्स्ट गो.
though there was resistance from the family that he should not be joining forces, but he was determined to join it. Resistance for the family. Yes, there was my mother-in-law, my father-in-law didn't want that he should be joining army, but he had that thing, I don't want to join the army, that too in infantry. My mother-in-law wanted, you go for ASC, you go for engineers, they are less risky, इतनी field posting नहीं होती हैं, मेरा बच्चा ठीक रहेगा, because when he graduated from IMA, that was in 1999, Kargil had happened in July, and he got commissioned in December 1999. तो मेरी mother-in-law को एक किसी भी माँ को भय होगा कि मेरे बच्चे की जीवन सुरक्षित रहे. He's going in that field, but he wanted to join infantry, and when he went there, उसको एक और जुनून हुआ कि नहीं मुझे one para SF like special forces parachute regiment का 1 battalion join करना है, और he was determined कि नहीं मुझे करना है. He was first rejected there, पहला probation में reject हुआ because he couldn't complete certain of his exercises. और ये है आर्मी में कि अगर आप एक बार रिजेक्ट हो जाते हैं पैरा के लिए प्रोबेशन में, तब दोबारा कॉल नहीं होते. बट ही ट्राइड हिज बेस्ट, ही वाज अगेन कॉल्ड, ही क्लियर्ड हिज प्रोबेशन अगेन इन July 2003 and he joined the elite para forces. तो ये है उनके बारे में. NDA में, IMA में, he had been a swimmer, he had been a best boxer, a good horse rider, and he had many BCA, उनके कैडेट एडजुटेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग के स्कूल में हाउस रिप्रेजेंटेटिव, हाउस कैप्टन्स होते हैं, इसी तरह से NDA IMA में भी कुछ कैडेट्स को हम स्पेशल रैंक्स ऑफ पोस्ट देते हैं, which look after that. So he was there even in IMA and in NDA, and he had that junoon कि whatever I'll do, I'll excel in that, and he's a living example. मतलब he proved it कि हाँ जो उसने किया उसने बेस्ट किया और उसमें उसको सफलता भी हासिल हुई. उसको ये था कि मुझे, और उसके 9 साल के टेन्योर में, 10 साल के टेन्योर में 6.5 साल कश्मीर में रहा. 6.5 साल. जी. First was the 38 ARA, this is Ashtra Rifles. He was posted in Rajouri at that time, and उसके बाद उन्होंने पैरा का अपना प्रोबेशन क्लियर किया. उसके बाद वो दोबारा गए. He was trained commando, and उसके लिए उनको इंस्ट्रक्टर ग्रेड भी मिला हुआ था, जिसके स्वरूप वो बेलगांव में जो कमांडो स्कूल है उसमें इंस्ट्रक्टर के बतौर 1.5-2 साल रहे. वही उनकी एक मान सकते हैं कि नॉन फील्ड पोस्टिंग थी. अदरवाइज ही मोस्ट ऑफ हिज टेन्योर उनका कश्मीर में ही रहा. I'm sure आपके लिए बहुत ही काबिले तारीफ है ये चीज. I'm sure आपके लिए it's a moment of pride to talk about him, and I'm sure it's a difficult as well. Yeah, so, it pains a lot when you lose a family member, and that too at such young age. But the pain is there, but the pride is also there. Both the things are there. So घर में उनको क्या बुलाते थे? मैंने जितना उनके बारे में पढ़ा है, चिंटू बुलाते थे. हाँ, he was called चिंटू. चिंटू नाम से लगता है ना शैतान बच्चा होगा, and he was exactly like that. शैतान बच्चा. और भाभी के साथ तो और भी शैतानियां. हाँ, लाइक हम लोग का एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था. वो मुझसे सिर्फ 3 महीने छोटा था, एंड जब मेरे हस्बैंड की लिए लड़कियां देखी जा रही थी तो हमेशा कहता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड और उसमें से 13 महीने का एज डिफरेंस है, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से अगर मुझसे छोटी होगी तो मैं भाभी नहीं बुलाऊंगा. बट जब हमारा रिश्ता हुआ तो ये हुआ कि नहीं, ये 3 महीने बड़ी है. मैंने कहा एक दिन बड़ा भी सीनियर होता है, तो मैं भाभी तो हूँ. तो हम लोग जैसे देवर भाभी में नोक झोंक होती है वो भी था. वी वर गुड फ्रेंड्स, और एक छोटे भाई की तरह था. उसको मैंने राखी बांधी है, एंड आई थिंक उसने पूरे देश की रक्षा करी है, और उस रक्षा सूत्र की पूरी इज्जत रखी है जो हमने उसको बांधी थी. जी जी. Really matter of pride for us that you are there, and we can hear it directly from you. It's एक वो जो बॉन्डिंग होती है वो सुनाई देती है, झनकार आवाज में दिखाई देती है, सुनाई देती है. इससे बड़ी बात नहीं कोई. हमारे पास now when I'm
talking about him, the visuals are literally moving around me. हम लोग कैसे बात करते थे, कैसे घूमते थे, कैसे we used to go out, watch movies, and what fun we used to have at that time. Yes. एक सेम एज का होना, एक वो अलग ही रिलेटेबिलिटी, एक बॉन्डिंग होती है. बिल्कुल. So I can imagine the pain. Then हमारे पास एक छोटा सा वीडियो भी है मेजर मोहित शर्मा का. So Ina ji, will you be able to play that still, or should I be playing it? Deepa ji, you'll have to play. मैं प्ले करती हूँ. ठीक है जी. Just a second, I'll just open that one. Are you able to see my screen? Yep, it is visible. Yes, it is visible. मोहित शर्मा को कनिष्ठ नेतृत्व क्षमता, उत्कृष्ट पराक्रम एवं अदम्य साहस का परिचय देने हेतु सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है. मेजर मोहित शर्मा. खुशियां बांटता था तो चेहरे खिल जाते थे. बहुत ही लविंग चाइल्ड था. उसको सभी लोगों से बहुत प्यार था. घर में कोई भी आदमी आता था उससे बड़ा अच्छे से पेश आता था. वो घर के सब लोगों की बड़ी इज्जत करता था. आकर्षित करने का उसमें एक वो था, उसकी तरफ लोग अपने आप ही झुक जाते थे. खुशकिस्मत थे वो लोग जो उन्हें जानते थे. जिंदा दिल थे बिल्कुल मेजर मोहित शर्मा. जितने हैंडसम उतने ही निडर. जब भी कोई नामुमकिन ऑपरेशन होता था उनके सीनियर्स उन्हें ही ढूंढते थे, क्योंकि मोहित शर्मा कभी फेल नहीं होते थे. कभी नहीं. मोहित बचपन से ही ऐसे थे और उनके सेना में आने के पीछे की कहानी भी नामुमकिन को मुमकिन करने वाली ही थी. मोहित से शूरवीर भारतीय सैनिक का भाई हूं, जिसने शायद भेष बदलकर ऑपरेशन करना, जिसे अंडर कवर ऑपरेशन कहते हैं, टीवी में हम लोग देखते हैं, उसकी परिभाषा को रियल लाइफ में बदल दिया. और 2009 में इंफॉर्मेशन मिलने पर ये बात की परवाह न करते हुए कि वहां पर 25 से ज्यादा आतंकवादी हैं, उनसे लोहा लेने पहुंच गया कि उसके देश की 1 इंच भी मिट्टी पर आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक उसकी जान में जान है. और 4 आतंकवादियों को मारने के बाद अपने 2 साथियों को बचाते बचाते छाती पर खोली खाने के बाद ये कहते कहते चला गया कि इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए. मैं उसका बड़ा भाई हूं और मुझे बहुत गर्व होता है, मेरी छाती फूल जाती है जब मैं ये बताता हूं कि मैं मोहित शर्मा का बड़ा भाई हूं. सुरभि जी, हमें भी बहुत गर्व है आज हमारे समझते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you for inviting me. The pleasure is all mine too. थोड़ा भावभीनी सी स्थिति हो रखी है अभी, बिकॉज आप ये भी बताइए मुझे, now that हमने इस टॉपिक पे तो किया, बट आई नोटिस we have
गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन के आसपास जो मेजर मोहित शर्मा कुछ मेट्रो स्टेशन भी बनाए, वो इन्हीं के नाम पर है? जी, जो गाजियाबाद में राजेंद्र नगर एरिया है जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है वो उनके नाम पे है, मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन। उनके नाम पे एक सड़क भी है जो जीटी रोड और लोनी रोड को ज्वाइन करती है, और जिसके एक एंड पे मेट्रो स्टेशन है और एक एंड पे उनकी मूर्ति भी अ, लगी है 24 मार्च 2021 को, जिसका अनावरण हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने किया है। और और वो मूर्ति भी श्री राम सुतार जी पद्मश्री हैं, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। बहुत बहुत सम्मान की बात है ये, और श्रद्धांजलि की बात है, हमारी ओर से भी भावभीनी श्रद्धांजलि। जी। तो सुरभि जी, कॉफी। यप, श्योर। अब आपके ऊपर, हमारे शो की गेस्ट आप हैं, तो जी। आप अब अपनी प्रोफेशनल करियर जर्नी के बारे में हमें बताएं। How did you become the CEO and the founder of Darian Innovative Technologies, and what is Darian Innovative Technologies? Yes, basically I come from I did my MSc in zoology and I aspired to be a civil servant, but I couldn't do that. Then I planned to do my PG diploma in mass comm and journalism, which also didn't interest me much. Then I got married. Then my mother-in-law said, "Let's आज तुम क्या करोगी? तुम B.Ed कर लो, M.Ed कर लो." Then my masters, I did my masters in education, and I started my career as a teacher, then gradually as an academic head. And while I was doing that, what was like disturbing me was कि how do we do like deal with the students with special needs? उनको ध्यान नहीं दिया जाता, उन पे कुछ नहीं करा जाता, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है मेन स्ट्रीम से. Then I did a course in special education for children, and then this RT Act came in 2016, where there's an emphasis on inclusive education, that these children with special needs should be in the mainstream and they should be learning with the students who are normal, the way we call it. So there's a friend of mine whose child is a non-verbal child, an autistic child. And so there were certain difficulties that we were facing. So one day while we were just talking about him, he said, how can a child who's non-verbal can communicate? So there was she said there are many apps in foreign countries where they communicate through it. So it said, Nika, can we develop an app? So my husband said, we cannot develop an app because we need certain people who are skilled in it. So I said, हम ऐसे नहीं बना सकते, और उसके लिए हमें क्या कहते हैं, फंडिंग की भी जरूरत होगी, क्योंकि हमें लोग हायर करने पड़ेंगे. Then this thought came कि let's float an IT company, and which was basically for the app, कि हम स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए एप्स बनाएंगे, क्योंकि उसको समझने के लिए हमें उन पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट करने की जरूरत है कि उन बच्चों की बेसिक जरूरतें क्या है और उन्हें क्या चाहिए होगा. तो इस तरह से कनेक्टिविटी होने के लिए हमने इस कंपनी को फ्लोट किया, विच वाज बेसिकली इनटू इट. लेकिन इतने पेरेंट्स हमें नहीं मिले जिनसे हम इंटरेक्ट कर सकें. हमने इसका फ्रेमवर्क तैयार किया, बहुत कुछ हुआ, लोग भी थे, बट इतनी अच्छी तरह से नहीं चल रहा था काम. तो फिर हम उसमें डाइवर्सिफाई हुए, हमने उसमें हायरिंग एंड स्टाफिंग भी शुरू करी. तो फिर एक्सपैंड होता चला गया. दिस कंपनी स्टार्टेड इन 2017 दिसंबर, एंड जब ये कोविड का ब्रेक आया, जहाँ पे स्कूल्स वगैरह में हम लोग नहीं इंटरेक्ट कर पाए कि हम इस जो एप्स हैं उनकी टेस्टिंग कैसे होगी, तब तक नहीं होगी जब तक वो एप्स हम स्कूल्स में नहीं देंगे, वहाँ स्कूल्स में या पेरेंट्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे जिनके बच्चे स्पेशली एबल्ड हों. तो अभी फिलहाल उस चीज का हमारा टेस्टिंग का प्रोसेस रहता है, और जैसे ही स्कूल्स खुलेंगे हम प्रिंसिपल से और टीचर्स से इंटरेक्ट कर पाएंगे. स्पेशल जो स्कूल्स हैं, जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं, जो उसने स्कूल्स में बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में रखते हैं, फिर इसकी टेस्टिंग होगी. एंड आई होप वो एप्स अच्छे चलें और उससे बच्चों की मदद होगी और पेरेंट्स की भी मदद होगी. ऐप तो है, पर ये ऐप है क्या? कुछ और डिटेल बताना चाहेंगे आप?
What exactly is like an जैसे जैसे बच्चे को हमने इमेजेस से रिलेट करना चाहा, बच्चा एक इमेज से अपने को रिलेट कर सकता है। उसे अगर चाहिए ही वांट्स वाटर, तो एक उसमें उसे अल्फाबेट्स सिखा दिए कि ए बी सी डी हैं, और बच्चा सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, तो ए उसने दबाया तो ए की आवाज आई, आई इस तरीके से पानी दिखा दिया। तो लाइक इफ यू वांट्स वाटर, तो उसके पास एक टैब होगा जिसमें वो ऐप इंस्टॉल्ड होगा, और उसमें वो कह सकता है आई वांट वाटर इवन इन इंग्लिश, या मुझे पानी चाहिए। तो वो इस तरह से उस बच्चे को ट्रेन करा जाएगा कि ये वर्ड्स बोल के वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि जो बच्चा नॉन वर्बल है वो नहीं बोल पाएगा। wonderful, उसमें से wonderful. साउंड निकलेगी कि आई वांट वाटर, तो आई पे दबाएगा, वाट पे दबाएगा, तो उसको उस एप्स के थ्रू उस बच्चे को आवाज दी जाएगी। Wow, wow. तो वो उसकी वो कह सकते हैं उसकी वॉइस बनेगा। I must say, technology has gone to a great extent. I mean, really, who would have thought like 20 years back that we'll be experiencing this kind of technology also and such to an advanced level? ट्रू, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज हम वर्चुअली ये सेशन भी नहीं कर रहे होते। Agree. Imagine 10 years back अगर COVID आ गया होता तो सब हम now घर में बैठे होते, ना टीवी पे इतने प्रोग्राम्स होते, ना हम सब इतने कम्युनिकेट कर पा रहे होते, ये ना व्हाट्सएप जूम कॉल्स, वीडियो कॉल, ये कुछ नहीं हो रहा होता। सब ऑफिस से बंद बैठ के बस घर में बैठे होते। ऐसे सब, हाँ, काम नहीं चल रहा होता कुछ भी, ना बच्चे पढ़ रहे होते, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही होती, लोग ऑफिस का काम नहीं कर रहे होते, बहुत सारी चीजें अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती, ले ऑफ्स हो जाते हमारे जैसों के तो। बिल्कुल। और फिर भी जूम पे है तो नौकरी बरकरार है। आई नो, बच्चे हैं, टीम्स है तो बच्चे पढ़ पा रहे, नहीं तो बच्चे भी घर में उधम काट रहे होते हैं। Absolutely, absolutely. So, Darian, technologies की आपने बात बताई. So, did you face, and now that your challenges also, you mentioned that you faced challenges about funds also and the right sort of people also. Anything more onto that journey, and how did you explore, and how is it going now? Since this lockdown, things are not that good as they used to be. When there is like crunches of funds and things, you actually not do that much, क्योंकि हमें जब फंड्स नहीं होते तो हम इतना काम को फैला नहीं सकते। और इस टाइम पे इसमें क्योंकि हमें फंडिंग की जरूरत होती है, तो काफी ऑर्गेनाइजेशंस में, एनजीओज में जाएं, बात करें, फंडिंग लेके आए, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने भी इस चीज पे एम्फेसिस दिया है कि वो चाहते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन हो इन स्पेशल बच्चों की। और गवर्नमेंट भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फ्लोट करने का सोच रही थी, बट इट केम टू एन हॉल्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड थिंग। And I think when it will open, we will even try to contact certain government organization कि they could offer some help, और उसको हम testing में या उसमें डाल सकें। Similarly, we don't get the right people कि हम किसको दें जो हमें इसकी exactly बता सके कि ये सही चीज है जो हमने डेवलप किया है, वो सही तरीके से उनको हेल्प कर रहा है। तो एक टारगेट जो लोग हैं वो भी मिलना डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक पेरेंट से कहना कि आपका बच्चा स्पेशली एबल्ड है, उसको ये बताना, और कि आप इसे ट्राई करके देखो। हर इंसान, हर माता पिता ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता है। आप तब भी पेरेंट्स करने लगे, लेकिन आज से अगर हम 10 साल पहले जाएं तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि लोग इसे एक सोशल स्टिग्मा की तरह लेते थे कि मेरे बच्चे में कोई कमी है। बट राइट टू एजुकेशन और RPWD एक्ट 2016, इन सब चीजों ने थोड़ा सा सिनारियो बदला है। I must say you're a wonderful friend. I mean, seeing your friend in pain for her non-verbal child, so आपने ऐप बना दिया. Wonderful, I must say. कोशिश है, देखिए आगे कितना सक्सेसफुल होता है वो तो उस चीज पे डिपेंड करता है। और मैं चाहती हूँ ये कोविड की सिचुएशन खत्म हो, स्कूल्स खुले, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो, जिससे उस चीज को हम आगे भी बढ़ा सकें। See, this kind of pain only a mother can understand for a mother. Yeah. ये बात तो है। अरे हम में से कितने होंगे जो हमारी फ्रेंड को कुछ तकलीफ है और हम उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक कंपनी खोल दें। ये अपने आप में बड़ी बात है। आई मस्ट से It just happened. It like we were just thinking about it कि अच्छा चलो कुछ ये करना है तो क्यों ना एक किसी नाम के अंडर करें।
नहीं तो फिर ऐसे तो करा ही जा सकता था कि हाँ हम किसी 2-3 लोग को बिठाते और करते, कि नहीं फिर हम आगे और चीजों में भी एक्सपैंड करें और चीजों को भी उस चीज में लाएं और तरह के ऐप, क्योंकि कहीं ना कुछ अब जैसे सेलिंग एप्स आ गई, हमने कभी सोचा था अमेजोन जैसी चीज होगी, हम घर बैठे बैठे ऑर्डर करेंगे, चीजें हमारे घर डिलीवर हो जाएंगी। हमने ऐसे 10 साल पहले चीज नहीं सोची थी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाँ, वही तो 10 साल पहले तो एक कोविड के टाइम से हमारी और बुरी हालत होती। अभी आपने एक और पॉइंट निकाल दिया कि ग्रोसरीज डिलीवर हो जाती है, उस टाइम पे नहीं हो पाती। बिल्कुल। सो टेक्नोलॉजी व्हाट का इज द मीनिंग? एडवांसमेंट, हाँ जी मतलब बताएं। मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब ने just changed the entire world. Oh, tremendously, humongously. And it's gonna be better and better every day, every day. हमने टेक्नोलॉजीज, हाँ मैं बचपन में जब हमें ये बताया जाता था कि ऐसे मोबाइल्स भी इन्वेंट होंगे और लोग एक दूसरे को देख पाएंगे, तो हम सोचते थे ऐसे थोड़ा ये ना होगा। मजाक है, ऐसा कभी हो हाँ, पाएगा नहीं। ये फेक न्यूज, ऐसे अफवाह उड़ाते रहते हैं लोग, कुछ भी बोलते हैं। नाउ दैट इट इज हैपनिंग। our generation has witnessed it. एक्चुअली So हमने वो फोन टाइम भी देखा जब हम ट्रंक कॉल बुक करते थे और घंटों तक वेट करते थे कि कॉल आएगी, और जोर जोर से चीख चीख के बात करते थे हेलो हेलो करके, उस 3 मिनट के इतने पैसे उससे मोबाइल फोन पे आना, और इनकमिंग के पैसे होना, आउटगोइंग के उसके डबल होना, ये एसएमएस से व्हाट्सएप पे आना, टेलीग्राम, सिग्नल, ये सब हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी चीजें होंगी, कि कोई हम चीज टच करेंगे और वो चीज हो जाएगी। हो जाएगी, वही बात है। हम ये स्टार वही ट्रेक बात है। बचपन में देखा करते थे, उसमें ऐसे पैनल्स होते थे कि वो कुछ टच करते थे, एलियंस और ऐसे सब होता था, तो हमें लगता था अच्छा ये तो ऐसी चीज है। बट अब लगता है कि हाँ, वो जब उन्होंने तब सोचा था वो स्टार ट्रेक बनाने में, तो उन्होंने बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके सोचा था कि इट विल हैपन, एंड वी आर अ लकी जनरेशन जिसने वो सब भी देखा है, जब हम फोन डायल करते थे घंटों घंटों तक और हमारी उंगलियां थक जाती थी, जो आज हम सिर्फ नाम देखते हैं, उस पर टच करते हैं और बात करते हैं। See? Now I was just 2-3 years back. I was reading an article about how innovative You are right. the world will become. So there was something that clothes or T-shirts will repair themselves, will repair on their own. Okay. So I was like, हैं? ये कैसे हो जाएगा? कपड़े अपने आप खुद ही रिपेयर हो जाएंगे? But then I watched this movie. Which one was this? When there is an Akshay Kumar and Tapti also and Vidya Balan also, Mission Mangal. Okay, and they Yes. put that fabric in that satellite, which repairs itself Yes. on its own. Yes. And I was like, oh, ये भी होता है. Otherwise, a lot of news comes to you and they say, we don't believe it that time. हाँ, हम But कहते when थे it नहीं ऐसा actually नहीं हो happens, सकता, बट कहीं ना कहीं शायद अब नहीं तो आने वाले समय में होगा। मैं हमेशा and कहती हूँ कि ऐसा ऐप बनना चाहिए कि माँ का हाथ निकले और बच्चा कुछ बदमाशी कर रहा हो तो माँ एक थप्पड़ मार सके बच्चे को और कह सके बेटा ये गलत बात है। तो माय डॉटर्स कीप सेइंग ऐसा ऐप तो कभी नहीं बनेगा मम्मा, ऐसा ऐप तो कभी नहीं बनेगा। मैंने कहा हमें नहीं पता, क्या पता बन जाए एक दिन कि बच्चा कहीं घूम रहा है और माँ अपना हाथ निकाले और एक लगा यहाँ नहीं घर चलो। देखिए, I can see a lot of heart coming on their screen. Whether it is for this or this. So Darien, आपका Darien ही क्या है? Darien is, am I pronouncing it correctly? It's Darien? like, yes, Darien. And German, it means, it's French, it means welcome. Ah, Yes. welcome. Fantastic. Welcome. Fantastic. So we wanted something because my husband's nickname starts with D. We wanted something to start with D. So we had been thinking what, then we ended up with this word, Darien. What is your husband's nickname now? Starting with D. Dabu. The elder one is Dabu, the younger one was Chintu. So this is Dabu Chintu. Oh, fantastic. Dabu Chintu. And what is your nickname? My nickname is Mona and my father calls me Mantul. Your father calls you? Mantul, Mantul. Mantul. Wow. That's a different name. My Oh, mom that's calls cute. me. Yeah. And It's you a have pyar like ke two- naam. Yeah, I have two girls. The elder one
is Ananya, the younger one is Ananta, the elder one's nickname is Chia, and the younger one's nickname is Pihu. So we are more into the nicknames rather than the real name. Oh, fantastic. Nicknames have their own cuteness and वो एक अपनापन अलग ही होता है. वो निकनेम अलग ही होता है. हमारे यहाँ तो किसी को ऑफिशियल नेम पता भी नहीं होते, बहुतों को नहीं पता होते. Like, अच्छा इसका ऑफिशियल नेम. Sometimes it happens like नहीं, like कई बार तो मुझे confusion हो जाता है क्योंकि I don't like Ananya and Ananta, they're very similar names. So sometimes the teacher says, "Ma'am Ananya," so I have to think, "Acha, the elder one is Ananya, the younger one is Ananta." ठीक है. वैसे तो I call them Chia, Pihu, even to the teachers, "Ma'am, Chia said this, Pihu said this." So even the teachers know कि हाँ, ये इनकी बेटियों के नाम Chia, Pihu, Ananya, Ananta तो हैं, but ये Chia, Pihu भी हैं. So coming to your girls, so how do you think the education that I mean, you and me actually went to schools, we had a different system, and now what I feel is that education system has evolved. I would not say changed. I'm it has evolved a deliberately lot. using the word evolved. It has. Like now things are more practical. It's just not bookish knowledge. It's just not the blackboard thing which is being imparted. They are doing and learning it for everything and anything, be it a computer assignment, be it a chemistry thing, be it a physics, be it English. Even in English, they are getting assignments, and there where they have to do it and then have to present it. For example, last year, my daughter had an English month competition where they had to present something about the new normal. So they had to prepare a talk show where they had a verb, and everything is incorporated in the technology. The computer science thing comes to it, the way you speak, the linguistics, everything comes to it, and then you have to present it. So there was a talk show that was like my daughter became an anchor, and then she had friends pouring into the thoughts, like she's a correspondent somewhere in Jalandhar, one is in Haridwar, and they had the virtual backgrounds for that. And then this is the way they are doing it. So they're learning a lot, and which is very good because हमने bookish knowledge ली है, हमने देखा अच्छा हाँ C+O2 is CO2, लेकिन हमारे बच्चे उस चीज को करके समझ के कर रहे हैं, सिर्फ रट के नहीं कर रहे हैं. Absolutely, absolutely. And what I feel is, मैं अपनी बात बताऊंगी. मैं जो I mean, imagine 5 or 6 years old की जितनी wisdom या say knowledge या जितनी grooming sense मुझ में थी, I feel आज के बच्चे are much more advanced. I mean, they're like super advanced, even at young age also. If I compare myself with that they're age, very clear in their thoughts what they want in life and how they want to achieve it. हमें तो हमारे पापा ने कहा बेटा ये सब्जेक्ट नहीं ये ले लो, हम ये इसका स्कोप अच्छा है, भले हमें वो समझ में आता था, साइंस नहीं आता था, अच्छा पापा ने कहा ले लेते हैं. ओके, मैथ्स होती नहीं थी, 10th तक जैसे जैसे करी, फिर फिजिक्स करी, फिर केमिस्ट्री करी, जैसे जैसे बढ़ते गए वो सब्जेक्ट छूटते चले गए जिसमें मैथ्स का एप्लीकेशन था. बट हम अपने पेरेंट्स से ये नहीं कह पाए मुझे ये नहीं पढ़ना. लेकिन आज का बच्चा कहता है मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये करना चाहती हूँ, ये करना चाहता हूँ और मैं ये करूंगी. एंड आई नो व्हाट आई वांट इन लाइफ, ये मेरा एम है एंड दिस इज माय पाथ टू इट. मुझे यहाँ ऐसे करना है, मुझे ये सब्जेक्ट चूज करना है और मैं इसको ऐसे अचीव करूंगी. एंड अगर ये नहीं करा तो ये मेरा फॉल बैक है, और अगर वो चीज अचीव नहीं कर पाई तो एटलीस्ट मेरे पास ये है. वो बहुत प्लानिंग से चल रहे हैं आजकल के बच्चे, एंड दे वेरी क्लियर व्हाट दे वांट. हमारे पापा ने कहा बेटा एमएससी कर लो, फिर सिविल सर्विसेज में बैठ जाना, वो नहीं हुआ तो पापा अब क्या करें, अच्छा बेटा चलो मास कॉम जर्नलिज्म कर लो, अच्छा पापा लॉ करूं, नहीं नहीं लॉ क्या छोड़ो, तुम ये हमारी मदर लॉ ने कहा बीएड कर लो, टीचिंग अच्छी रहेगी बच्चों के साथ, वो कर ली. मतलब जो जो कहता गया हम करते गए. आज अपनी बेटी से कहूँ बेटा तू यहाँ से उठ के यहाँ बैठ जा, अगर उसे नहीं बैठना होगा तो वो नहीं उठेगी, वो बिल्कुल नहीं, टस से मस नहीं होगी. आप कहते रहो वो बैठी रहेगी, जब उसका मन होगा वो तभी करेगी. और so these are super smart kids, super smart kids. I mean, हमने भी उनको लिबर्टी दी है ना सोचने की, समझने की. हमारे पेरेंट्स ने सोचा नहीं, हमने जो चीजें देखी है, जो हमने गलतियां की है वो हमारे बच्चे ना करें. बट हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे पेरेंट्स, हमारी वो जनरेशन है जो बीच में फंस गई है. हमने अपने बड़ों की सुनी, हम अपने बच्चों की भी सुन रहे हैं.
एग्जैक्टली मैं वही कहने वाली थी, मेरी नेक्स्ट पॉइंट ही यही था कि जहाँ स्कूल की एजुकेशन की बात हो गई, पेरेंटिंग प्लेज ऑल्सो अ मेजर रोल हियर. True, Parents are true. much more relaxed. They are giving much more liberty. I mean, मैं अपनी ही बात बताऊं कि मेरे पास इतनी लिबर्टी नहीं थी और मुझे तो डर हमारे लगता पास था. नहीं थी, नहीं, हमें अपने पापा से आज भी डर लगता है कई बार कि हम आज बहस के बच्चों करेंगे को तो नहीं पापा, लगता. नहीं, आजकल के बच्चे सबसे बहस करते हैं। वो अपनी टीचरों से, हम आज भी हमारी टीचर दिख जाएगी हमें मेरठ में आबू लेन पे, तो हम गुड मॉर्निंग मैम करके एक तरफ हस्बैंड से जूट छटक के खड़े हो जाएंगे कि हमारी मैम है। और आजकल के बच्चे मस्त टीचर, अच्छा ये तो मुझे पढ़ाती नहीं, मैंने विश क्यों करूं? तो बहुत कॉमन सिनेरियो हो गया है। एक बात बताएं कि अभी पेरेंट्स भी देखें तो हमारे मतलब मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, मतलब हर चीज में ही स्ट्रिक्ट थे. वी हैड आवर ओन डूज एंड डोंट्स एंड सम रिस्ट्रिक्शंस. मैं आपको अपनी बताऊंगी, मेरा तो ये भी था कि अंधेरा होने से पहले घर पे आना है. इवन आई वाज हमारे टाइम वर्किंग पे दैट था। टाइम आल्सो. ये गोल्डन रूल था हमारे यहाँ का, अंधेरा होने से पहले घर आना है. तो आजकल के बच्चे आर लाइक सुपर एडवांस्ड and they have their own parties, they have their own groups, and even at such a young age, and parents are also cool with that. How cool थोड़ा are सा you? How ट्रस्ट cool mom are फैक्टर, you? I'm not a very cool mom. Not a very cool mom. Yes, when it comes to studies, I am cool. But when it comes to discipline, I am not. I want my kids to be disciplined. Once you inculcate the habit of being disciplined, you will be disciplined forever. And that will be very helpful for you to be successful in life. But when it comes to studies, हाँ ठीक है, I don't expect कि नहीं आप 99% लाओ, आप यहाँ select हो, आप वहाँ, आप अपनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, करो. The marks are not the guarantee for your success and for your happiness. You should be happy. You should be healthy. That is more important. And discipline रहेगा तो success भी आएगी. Agree, agree. I mean, So I am yeah. not a very cool mom like moms are. I talk to them, I go out with them, we freak out, we go for like long drives, me and my both daughters. हम बात भी हर तरह की करते हैं, बट जहाँ पे आता है कि नहीं क्या सही है क्या गलत है, I'm there to correct them. I'm not the ones who will agree my daughter saying hi to uncle and aunties. I'm the one who will always say बड़े हैं नमस्ते करो, हाथ जोड़ के करो, और ग्रीट करना है तो अपनी संस्कार और अपनी संस्कृति के अनुसार करो. I agree to that. I totally agree to that. ये तो अपने बिल्कुल I don't मेरे like kids saying बात. hi auntie, hi auntie. और मैं फिर मैं यही कहती हूँ बेटा खुश रहो, हाय. जब मैं आशीर्वाद हिंदी में दे रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि भैया तुम मुझे भी नमस्कार कर दो. तो माय डॉटर से मम्मी सब हाय कहते हैं और हम ही नमस्ते करते हैं. मैंने कहा कोई बात नहीं, ये हैबिट रखो, आगे तुम्हें काम आएगी. और अगर नमस्ते करोगे, हाय में आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप नमस्ते करोगे तो आपको आशीर्वाद ही मिलेगा और वो हमेशा काम आएगा आशीर्वाद आपके. वाओ, वाओ, ये चीज मैंने सोची भी नहीं थी कि नमस्ते करने से आशीर्वाद ही मिलेगा. I mean, ये सब बहुत ही नई बात है, सीरियसली. आपको कोई नमस्ते बच्चा करता है तो आप कहते हैं नमस्ते बेटा खुश रहो. आपको कोई हाय हाँ, कहता है तो आप हाँ. कहते हैं हाय कैसे हो. वी एंड द कॉन्वर्सेशन देयर. आर प्रॉब्ली वी विल जस्ट से हाय और आप बैठ जाओगे. बट अगर आप नमस्ते कोई बच्चा करेगा तो आप आशीर्वाद जरूर दोगे. हाँ, ये तो है, ये तो है, ये तो हमारे बड़ों का मतलब अंदर से निकलता ही है. हाँ, और वो आशीर्वाद का न जाने कहाँ काम आए. एंड क्योंकि आशीर्वाद हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा आपके लिए अच्छा ही करते जी, जी. एंड ये बात भी आपने बहुत सही कही कि you're not fussy about their academics and grades and numbers. You let them choose and you will let them choose their passionate field, whatever they. Yes, and I have been doing that. My daughter came in 11th last year. In 2020, she gave her boards, and since she wanted to like go for civil services, we were like, "Beta, tum humanities ले लो, सही रहेगा." And then she said, "मैं humanities तो हमारी बात हो गई जब उसे फॉर्म भरना था कि नहीं कल तो फॉर्म भरना है, ह्यूमैनिटीज लेनी है." She went and she filled in with PCM. I said, मैथ्स मत लो, डिफिकल्ट पड़ेगा. उसने कहा नहीं मम्मी, बायो मुझसे होगी नहीं, मैथ्स मैं कर लूंगी एंड आई विल ट्राई फॉर इंजीनियरिंग. क्योंकि किसी चीज की श्योरिटी नहीं है. ठीक है, एक बार इंजीनियरिंग में तो मैं निकल जाऊंगी क्योंकि
कहीं ना कहीं तो नंबर आ जाएगा, लेकिन सिविल सर्विस इनकी नहीं है, तो मेरे पास एक फॉल बैक होगा। आई हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कि अगर मैं वहां नहीं होती तो मैं कुछ कर लूंगी। अगर मैं मैथ्स साइंस सब्जेक्ट से 12th तक करती हूँ और उसके बाद मैं ह्यूमैनिटीज में चली जाती हूँ, तो मेरी एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, मेरा एनालिटिकल ब्रेन रहेगा। तो फिर हमने कहा अच्छा जैसा आपको ठीक लगे, बट आप ये मत कहना कि मैं ये करना चाहती थी, दिस इज योर डिसीजन, यू डिसाइड एंड यू विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। एंड शी सेड ओके, मैं ये ले रही हूँ और मैं ये कर रही हूँ। Wonderful, wonderful. I mean, I am amazed to see this intellectual conversation between the parent and the child. Oh, I am amazed. So, She is like, she is very clear what she wants, and then she says once I get into a college, I will be participating even in the beauty pageants. I said fine, but you need to have a need to go in a good college, and there's no restriction for that, but you can go, but आपके हाथ में कुछ होना चाहिए, because that cannot be a profession, that can be a passion. हमें Yeah. प्रोफेशन ऐसा रखना चाहिए जो हमें बुढ़ापे तक खाना पीना दिलवाता रहे, this क्योंकि thing जो I आपकी ये also ग्लैमर की वर्ल्ड है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, उसकी लाइफ बहुत agree, कम है, और जरूरी नहीं है सबको वहां सक्सेस मिले। agree. I also agree to it. Profession and passion. If your passion is not fetching you or feeding you, not able to, then it has to be different ways. It's not that you Yeah. leave your passion, continue that, but at least have a Okay. strong profession as your plan B. Or I said, And it's yes, primary plan. हाँ, हमेशा एक आपके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए which gives you a good standing in society, you're respected, and then you pursue whatever you want to do. You're not dependent on anyone. You can take your decisions once you are uh, old enough to decide what is this. And looking at you, you hold many degrees. What I heard you, and they're like, yay, this, Like, and I was like, ah. I was talking to my sister today. She said our father wanted, since he is a retired IPS officer coming from that background, and she said our father wanted us to be collector, but we became degree collectors. We collected degrees. So I was like, yes, at least we are collecting something, not the revenue, but the degree. Yes, See, literally, they have fulfilled that dream at least. Yeah. So this is like that. So I love that thing what my sister said to me today. Oh, fantastic. Coming to Darian Technologies, what do you think is the way forward? How do you look at it? अब वहां से यहाँ तक आए, अब यहाँ से कहाँ जाना है? We are diversifying into many fields like staffing we have started with. We are collaborating with certain companies where we can do certain work for them. We can take projects and we can work on it by hiring people. And this is, yes, right now we don't have that much of staff, but yes, as gradually we'll get the projects, we will also get into hiring of people. And I hope our company goes ahead, and it's one of the renowned companies one day. And we have offices at 10 number of places, not only in India, but abroad too. It becomes a multinational company. इंशाल्लाह जरूर, हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस सब आपके साथ हैं. बिल्कुल, and the best and good wishes do work. And I personally believe they do. I mean, any good deed, it always comes back to you. It's a boomerang in today's world, and it has always been. जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अच्छी काम, नेक इरादे से करे हुए हमेशा अच्छा ही फल देते हैं आपको. जी जी. Any regrets that you have in life? Regrets are momentary. I do have, but they were momentary. Okay, tell me only 1, 2. We have short of time now. 1, 2. क्या मैंने ऐसा किया होता या वो डिसीजन सही रहता? मैंने अगर अपने कॉलेज डेज में पढ़ाई अच्छी करी होती तो आज शायद मैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड एक डिफरेंट वे में होती. प्रोबेबली आई वुड हैव बीन एन आईएएस और पीसीएस ऑफिसर, बट उस समय मैंने पढ़ाई को इतनी तवज्जो नहीं दी,
उस समय था अच्छा यहाँ घुमाते हैं, यहाँ ये कर लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन के फोटोग्राफ खिंचवा लेते हैं। मैं और मेरी बहन एक दूसरे के साथ फैशन शूट करते रहते थे, ये करते रहते थे। हमने पढ़ाई को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसकी एक अलग वैल्यू है, मैं मानती हूँ। एंड वंस इन यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, आपके लिए बहुत सारे और वेज निकल जाते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। अपना एक अलग सेटिस्फैक्शन होता है, वो एक अलग बात है, बट हम अगर जेन्युइनली चाहें तो हम बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुरभि जी, आपसे बात करके मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी चीजें जो मैंने कभी सोची नहीं थी कि हाँ ये रिग्रेट्स होंगे, कभी कुछ आता था कभी आज, अब जो पहली चीज पूछी वो ये आई, तो मुझे लगा ये सबसे बड़ा रिग्रेट है। मैंने शायद ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपने सोचा भी नहीं था और एकदम से पर आपको आंसर आ गया उसका। हाँ, क्योंकि वही दिमाग में आया तो उसका मतलब वो है मेरे, वो बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, ये मेन रिग्रेट है मेरा लाइफ का। I would now like to invite our founder of Positive Thoughts, Mr. Gaurav Sharma, for a few words for us, please. Gaurav ji, are you there? Yes, I'm here only. Am I audible enough? Yes, you are audible and visible. Over to you. Great. आप सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्ते and a very beautiful evening to all. And Surbhi ji and Deepa ji, you just nailed it. Surbhi ji, the way you inspired us today is beyond the expectation which anyone can even imagine कि interview shows ऐसे भी हो सकते हैं online. Because ये पॉजिटिव थॉट का पहला लॉन्चिंग एपिसोड है और आप एज अ स्पेशल गेस्ट हमारे यहाँ आए हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए एक सम्मान की बात है। बिकॉज जिस फैमिली से आप आते हैं, चाहे वो आपके पैटर्नल साइड का हो या इन लॉ साइड के हो, इंडियन आर्मी एंड जो डिफेंस का है वो हम सबके अंदर बोलते हैं ना, वी ऑल आर इंडियन, तो हमारे खून के अंदर है ये सब कुछ, ये जज्बा जो होता है। आपने जिस तरीके से अपनी पूरी जर्नी शेयर करी है, इट इज ट्रूली इंस्पायरिंग, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ सिस्टर इन लॉ, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर। आप कुछ भी किसी भी रिलेशनशिप की बात कर लीजिए, आप हर चीज को एक बैलेंस की तरह चल रहे हैं। एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट यू एंड हैट्स ऑफ टू यू। दीपा जी, आपने बहुत ही अच्छा होस्ट किया है, यू आर अ सुपर 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 ऑसम मॉडरेटर। एंड यस, थैंक्स टू ऑल माय ऑडियंस जो आज हमें यहाँ ज्वाइन करे हैं यहाँ पर जूम में, और बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ कि फेसबुक पे ये लाइव शो देख रहे हैं। एंड हर किसी को एक इंस्पिरेशन मिली है आपकी जर्नी जानने के बाद, और आपके जितने भी फ्यूचर प्लान्स हैं जो आपने शेयर किए हैं। तो थैंक यू सो मच once again for accepting our invitation for our launching episode. And Ina ma'am is there. Ina ma'am is taking care of the every technical part. हर चीज वो देखती हैं हर बार, और आज भी वो देख रही हैं। उनका नाम मैं कभी नहीं भूल सकता यहाँ पर लेने से। वी हैव जानवी जी। एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर एक टेलीफोन नंबर फ्लैश कर रहा था। मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों के पास अगर मेरा नंबर है तो आप प्लीज अपना कंप्लीट नेम मुझे पर्सनल इनबॉक्स में सेंड कीजिए फॉर योर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो आप ग्रुप के मेंबर होंगे या आप किसी के थ्रू आज जुड़े हैं जूम मीटिंग के लिए, आप उनके थ्रू मेरे को अपना कंप्लीट नेम सेंड कीजिए सो दैट वी कैन डू द नीडफुल फॉर यू। ऑलराइट। एंड इस खुशी के मौके पे फर्स्ट लॉन्चिंग एपिसोड पे मैं सुरभि जी आपको फेलिसिटेट करना चाहूंगा एक वर्चुअल फेलिसिटेशन के थ्रू। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी है एक साथ। एंड प्लीज एक्सेप्ट आवर टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, एक छोटा सा एक सर्टिफिकेट है आपके लिए हमारा वर्चुअल फेलिसिटेशन। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। एंड मैं अपने होस्ट को भी, दीपा जी को भी फेलिसिटेट करना चाहूंगा फॉर होस्टिंग सच अ वंडरफुल एपिसोड टुडे। प्लीज शेयर द सर्टिफिकेट। So was Surbhi ji is visible to you? We can have that certificate once again. Sure, sure. Just a second. Yeah. Is that visible to you now? Yeah, it is visible. Yeah, it's visible. Please accept Surbhi ji. Thank you so much, Gaurav, and thank you that you invited me for the first session.
and it's a matter of pride for me too, an honor. It is our pleasure. It is our complete honor. And now I would like Deepa ji to share her certificate. Sure, just a second. Is that visible now? Yeah, it is visible. Congratulations, Deepa ji, for hosting such a wonderful launching episode of Arabica Coffee Blooms of Positive Thoughts. You all are the pillars of this organization, Positive Thoughts. And हर हफ्ते every Wednesday शाम 6 बजे एक कॉफी टॉक शो पे मिलेंगे. नए नए गेस्ट आएंगे, वो अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि वो बाकी लोगों को इंस्पायर कर पाए और हम लोग कुछ सीख पाए उनसे. आने वाले दिनों में हमारा ट्रेनिंग सीरीज भी आने वाला है एवरी सैटरडे एंड संडे सेम 6 PM ऑनवर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. Thank you so much everyone, and Deepa ji, now you can take the charge. Thank you so much, Gaurav ji. Thank you so much, Surbhi ji. Thank you so much, Ina ji. Thank you. All wonderful people, all our lovely audience here. And it was a wonderful show. I thoroughly enjoyed it. I'm sure you guys all have also enjoyed, learned, in getting inspired, got insights of parenting, of a journey of an entrepreneur, a lovely girl from studious academic girl, which she still regrets that she didn't study enough. But ask me, I think she has done a tremendous job and a terrific job. And I salute you where you are today. So thank you so much, all of you. And it was a lovely evening. Deepa ji, Very sorry to interrupt. If anybody wants to ask something from Surbhi ji, we can take 1 or 2 questions maximum. 1 or 2 questions. okay. I request anyone from the audience, if you have any questions, you can let me know, please, or you can put it in the chat box, Or you can just raise your hand if you want to ask. or anything. raise your hands, please. We have Supriya ji here. Supriya ji, I would request, do you have any question? Anything in specific? Sunita Pandey ji? Well, the session was so inspiring and motivating that my all questions have been solved when Surbhi ji spoke, and it was really, really mind-blowing session. Thank you so much for inspiring all the women who were listening to you, Surbhi ji. Thanks a lot. Thank you, Supriya ji. We have Thank you Deepika so ji. much. Sunita Deepa- Pandey ji, are you there? I am there. Deepa ma'am, I just would like to say कि सुरभि मैम की 80% की लाइफ की स्टोरी मेरी लाइफ से बिल्कुल मिलती है. So I was connecting myself each and everywhere. Almost quite similar with your each and everything. The way you, I was just thinking, oh my God, this almost everything. Thank That's you sweet. so much. You are a big source of inspiration, ma'am. Really. Thank you so much. Thank you. Ritika ji, you raised your hand. जिंदगी में रिग्रेट तो मत करिएगा, बिकॉज आज जो आप है ना मैम, वो जो आप एक IAS ऑफिसर बनती, वो हर एक की अलग बात है. बट कभी कभी मैं सोचती हूँ एक IAS ऑफिसर अपना अपना सोच है, जब कोई बनता है वो भी अलग बात है. बट सिर्फ मैम एक नेता के अंडर वो चाह के भी कोई वो काम नहीं कर सकता है. आज आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे जो कर सकती हैं, और एक समाज में जो आप चेंज लाना चाहती हैं, यू आर फ्री टू डू दैट मैम. I It's agree. wonderful. मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ. Thank you so much. Thank you so much, Sunita ji. Ritika ji, you raised your hand. Thank you so much, Surbhi ma'am, for taking this initiative to make app and all. But मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि मैं भी डिसेबिलिटी सेक्टर पे काम करती हूँ और आप तो इंस्पिरेशन है हमारे लिए, क्योंकि एक कुछ प्लेटफॉर्म पे काम करना, इतना आइडिया. और आपने ये बात सही बोली कि फंड्स की बहुत ज़रूरत होती है जब हम इंक्लूजन पे काम करते हैं, वैसा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करते हैं. क्योंकि अगर हम फॉरेन की बात करते हैं तो फॉरेन में जब हमारी इंडियन कोई भी बच्चा बाहर जाता है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर वैसा बना दिया जाता है, इको फ्रेंडली. उन बच्चों के लिए उनके जो इवन के फ्रेंड्स होते हैं उनके लिए भी वैसा एटमॉस्फेयर होता है कि उनको एक काउंसलिंग सेशन होता है डे बिफोर, जब वो बच्चा वहाँ पर एडमिशन लेता है.
है। तो बिल्कुल। आपने जो ये ऐप की बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने ये कहा कि ये टेक्नोलॉजिकल ऐप आपने बना दी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिर्फ स्कूल्स में ही टेस्टेड होगी या नहीं, ये इन पेरेंट्स को भी जी जी इंडिविजुअली दी जा सकती है, जी जी मैम जिनको इंटरेस्टेड, बट हमें वो टारगेट जो है, जिसको वो जी जी मैम चाहिए, उसको पता करना, उसके बारे में जानना और उनको वो देना कि हाँ, वो अपने लेवल पे उसे टेस्ट करें और जाने कि वो कितना उनके लिए फीजिबल है और उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। जब तक हमें पेरेंट्स से रियल फीडबैक नहीं मिलेगा, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, हम जी उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो वो हमें टारगेट पेरेंट्स चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब स्कूल्स खुले, हम प्रिंसिपल से, जो उनके एजुकेटर्स होते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, उनसे जी बात करें और उस चीज को देखें कि कैसे क्या आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उनका फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम एक माइंडसेट से चलते हैं, ये चीजें हैं, बट हर पेरेंट एक अलग परेशानी से जूझता है, जी जी हर पेरेंट की एक अलग डिफरेंट नीड होती है। तो एक चीज एक हर पेरेंट की नीड्स को केटर नहीं करेगी, जी सबके लिए एक अलग अलग चीज एस्पेक्ट होनी चाहिए जो एक ही ऐप में इनकॉर्पोरेटेड हो। जी जी। क्योंकि मैम आपको भी पता है पेंडेमिक की वजह से 44% इस समय जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं वो इफेक्ट करे हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ बिल्कुल, एजुकेशन, बिकॉज हम लोगों के पास स्पेशल एजुकेटर्स नहीं है इंडिया में, सबसे बड़ा लैक हमारा ये है। सबसे बड़ा तो ये ये जो ऐप है ये अगर, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारी रूरल और अर्बन जो भी पॉपुलेशन है इसमें ज्यादातर वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। नहीं, तो ये इवन इनिशियली जब टेस्टिंग फेज में होगा जी तो जी ये जी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, इसके लिए जी वी जी वोंट बी जी चार्जिंग एनीथिंग, बट ओके हाँ, ओके हमें दैट्स उस ग्रेट। इसीलिए हमें फंडिंग की जरूरत होती है ना, कि जब हम कोई चीज, जी जी क्योंकि जी जी ये एक पैसा कमाना तो हम बहुत सारे और जरियों से भी कमा सकते एग्जैक्टली। हैं, है ना, थैंक वो यू वाली सो चीज। मच मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much to our lovely audience. Now it's already time 6:58 p.m. India time. So it's time for our wrap up. I thank everyone, all of you, the speaker, the founder, the audience, the Inaji, the technician here. So thank you all of, and until we meet again, stay at home, stay safe, and hope we shall come across on the screen again next time. Till then, bye-bye. Take बाय, care. Have a टेक lovely केयर, evening away. Bye-bye. बाय, टेक केयर।